हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोना मेक दीज कैंडीज़। आज के ट्यूटोरियल में हम ये कैंडीज़ बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। थोड़ी सी ऊन इसमें सिर्फ लगेगी। यू कैन यूज़ अप ऑल योर स्क्रैप yarns फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन हैव देम इवन इफ यू आर ऑन अ डाइट। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमने मैजिक सर्कल बनाना है। चेन 1 टू सिक्योर द मैजिक सर्कल। चेन 1 कर लेंगे। Now we need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. तो magic circle में हमने 6 single crochet stitches बनानी है. Go in and I'm not going to yarn over, I'm going to yarn under. तो मैं ऐसे loop को नहीं pull कर रही हूँ, मैं इस तरीके से loop को pull कर रही हूँ. जब भी हम amigurumis बनाते हैं या कोई भी toys बनाते हैं crochet में, तो अगर हम yarn under करते हैं तो उससे बहुत अच्छा effect आता है. So it gives a very nice effect when you yarn under. So whenever you're making amigurumis or toys using crochet, it's better to yarn under rather than yarning over. So go in, yarn under, pull up a loop, pull through both the loops. So 2, 3, 4, 5 and 6. तो हमने 6 single crochet stitches बना ली. Now I'll pull the yarn tail and close the magic circle. Magic circle को मैं close कर दूँगी. Now we need to go into the first single crochet stitch and slip stitch to join, but we'll go into the back loop as we'll be using the front loops later on. तो जो front loops है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. अभी हम सिर्फ back loop में जाएंगे और slip stitch करके join करेंगे और इस round में हम सिर्फ back loops में काम करेंगे. So we'll slip stitch and join, chain 1. We need to make 2 single crochet stitches in each of the stitches that we have, but only in the back loops. तो अब हमें जितनी भी हमारे पास stitches हैं हम उनके back loop में दो single crochet stitches बनाएंगे. So go into the back loop of the first stitch, 1, into the same stitch, 2. Go into the next stitch, back loop, 1, go into the same stitch, 2. Go into the next stitch, back loop, 1, same stitch, 2. Next stitch, 1 and 2. Next stitch, 1 and 2. So let me count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One last stitch is left, 1 and 2. We have worked only in the back loops, so we'll be using the front loops later on. Now we'll go into the first single crochet stitch of this round and we'll join. We are going into both the loops now. अब हमें दोनों loops में काम करना है. Let's begin with round number 3. So for round number 3, chain 1 करेंगे. 1 single crochet stitch into the first stitch. पहली stitch में एक single crochet stitch बनाएंगे. And we are going into both the loops now. अब हम दोनों loops में जा रहे हैं. 2 single crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 2 single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. So every second stitch we are doing an increase. हर दूसरी stitch में हम increase कर रहे हैं. Then 1 single crochet stitch into the next. 2 single crochet stitches into the next stitch. 1 and 2. 1 into the next. 2 into the next stitch. 1 and 2. 1 into the next. 2 into the next stitch. 1 and 2. 1 into the next. 2 into the next stitch. 1 and 2. And let me count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 into the next stitch. 2 into the last stitch. 1 and 2. So we have a total of 18
सिंगल क्रोशे स्टिचेस। अब हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं। नाउ विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन। तो ये हमने जॉइन कर लिया। नाउ नेक्स्ट राउंड, राउंड नंबर 4, 5, 6 एंड 7, वी जस्ट हैव टू प्लेस वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। तो नेक्स्ट जो राउंड्स है 4, 5, 6 और 4, 5, 6 और 7, जो 4 राउंड्स हैं, उसमें हमने सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है। चेन 1 एंड one single crochet stitch in each of the following stitches. The next 4 rounds will be same. The pattern of the next 4 rounds will be the same. Just one single crochet stitch in each of the following stitches. And I'll meet you back here after completing these 4 rounds. तो ये 4 rounds मैं complete करके फिर आपको मिलके बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। आपने कुछ भी नहीं करना अभी इन 4 rounds के लिए, सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में आपने करते जाना है और फिर ज्वाइन करके वापस से चेन 1 करके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना है। सो यू नीड टू कंप्लीट योर राउंड, then slip stitch to the first stitch, chain 1 and begin your next round. One single crochet stitch in each of the following stitches and then again slip stitch to join. So I'll complete 4 rounds till round number 7 and then I'll meet you back here. तो मैं round number 7 तक complete करके फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए मैंने round 7 तक complete कर लिया है। I have completed till round 7. एंड नाउ इन दिस राउंड वी नीड टू डू डिक्रीजेस। अब इस राउंड में हमें डिक्रीजेस करने हैं ताकि ये जो यहाँ का शेप है वो यहाँ पे भी आ जाए। चेन 1, दिस इज़ राउंड नंबर 8, ये राउंड नंबर 8 है। चेन 1, एक चेन बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच। तो ये जो पहली स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज। अब हमें डिक्रीज करना है तो नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उनको हम साथ में क्रोशे करेंगे। We'll go into the next stitch, yarn under and pull up a loop, go into the next stitch, yarn under and pull up another loop. Now you'll have 3 loops on your needle, yarn over and pull through all the 3 loops. So here we have done a decrease, यहाँ पे हमने decrease कर दिया है। In next 2 stitches again we need to do decrease. तो next दो stitches है, इस पर फिर से हमें decrease करना है, दोनों को साथ में crochet करना है। Go into the next stitch, yarn under and pull up a loop, go into the next stitch, yarn under and pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो हमने यहाँ पे अब 2 decreases कर दिए। We have done 2 decreases, one single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे and again we need to repeat decrease here। फिर से हमें decrease करना है। go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Again we need to do a decrease, फिर से हमें decrease करना है। go into the stitch, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. फिर से हमने decrease कर लिया। one single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे। now again we need to do 2 decreases, फिर से हमें 2 decreases करने हैं। go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. फिर से एक और डिक्रीज हमने यहाँ पे करना है। go in, pull up a loop, go into the next, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. अब एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है, one single crochet stitch into the next. now last 2 stitches are left, we'll do a decrease here। last 2 stitches रह गई हैं, इसमें हम decrease करेंगे। go in, pull up, go into the next, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Now slip stitch to the first stitch of this round and join। तो जो पहला स्टिच था इस राउंड का उसमें हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। एंड दिस completes our राउंड नंबर 8। राउंड नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 9 नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं। अब हमें 6 डिक्रीजेस करने हैं इस राउंड में ताकि हमारे पास ये जो 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं ये कन्वर्ट हो जाए 6 स्टिचेस में। नाउ वी नीड टू डू 6 डिक्रीजेस सो दैट दीज 12 स्टिचेस वी कैन मेक देम इनटू 6। तो चेन 1, सबसे पहले हम चेन 1 करेंगे एंड दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू ऐड आवर पॉलीफिल। तो यहाँ पे हमें पॉलीफिल ऐड करना है, तो हम पॉलीफिल ऐड कर लेते हैं। वी नीड टू ऐड वेरी लिटिल पॉलीफिल इन देयर, वी डोंट नीड टू स्टफ इट टू मच। तो थोड़ी सी ही पॉलीफिल हमें इसके अंदर डालनी है ताकि वो शेप होल्ड कर ले। बहुत ज़्यादा नहीं स्टफ़ करनी इसमें, बस थोड़ी सी कि वो शेप होल्ड कर ले, बस उतनी हमने इसमें पॉलीफिल ऐड करनी है।
अब हम अपना 9th वाला राउंड स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 9. तो हमने चेन 1 ऑलरेडी कर दिया था. वी हैव ऑलरेडी मेड 1 चेन टू स्टार्ट द राउंड. नाउ विल गो इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. तो जो पहली स्टिच है उसमें जाएंगे हम, एंड वी नीड टू डू अ डिक्रीज. सो विल पुल अप अ लूप. इसमें लूप पुल करेंगे. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अनदर लूप, yarn over, yarn under, no, yarn over, I'm so sorry, oh god, yarn over and pull through all the 3 loops. Then again go into the next stitch, pull up a loop, go into the next, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. इसी तरीके से हमने 6 टोटल डिक्रीज करने हैं. तो हमने 2 कर लिए हैं. वी हैव डन 2 डिक्रीजेस. वी नीड टू डू 4 मोर. गो इन, pull up a loop, go into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Go into the next वाली stitch में जाएंगे, loop pull करेंगे, उसके साथ वाली stitch में जाएंगे, एक और loop pull करेंगे, yarn over करके. 1 मिनट, पहले साथ वाली stitch में जाएंगे, एक loop को pull करेंगे, फिर उसके साथ वाली स्टिच में जाएंगे, एक और लूप को पुल करेंगे, और जब 3 लूप्स हो आपकी नीडल में, यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेना है. तो इधर हमने 1 2 3 4 बार कर लिया. गो इन, पुल अप, गो इनटू द नेक्स्ट, पुल अप अनदर लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. 1 2 3 4 5. Now 1 last decrease is left. एक last decrease रह गया है. Go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up another loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो ये हमने अब यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है. ये देखिए लास्ट 6 स्टिचेस रह गई हैं. अब ये 6 स्टिचेस रह गई हैं. अब हमने फासन ऑफ नहीं करना. we'll not fasten off, we'll pull the yarn tail and cut. तो yarn tail को हम पहले pull कर लेंगे long enough and then we'll cut it, and then we'll use this to close the opening on top. तो जो ऊपर opening है उसको हम इससे close कर देंगे. Now we'll take a tapestry needle. tapestry needle लेंगे पहले. तो tapestry needle से पहले thread कर लेते हैं. And from here we'll go into the back loops of the stitches, not in the front loops, because we need to use the front loops, as even on this side we left the front loops, so on this side also we need those front loops. तो front loops हमें चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा था सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी छोड़ना है. तो हम सिर्फ बैक लूप में जाएंगे, स्टिचेस की बैक लूप में जाएंगे, और ये जो ओपनिंग है इसे हम क्लोज कर देंगे. लेट मी पुश द पॉलीफिल इन. नाउ वील गो इन टू द बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच, then in the second stitch, then in the third stitch, only in the back loop, then into the fourth stitch. देखिए मैं सिर्फ बैक लूप में से नीडल को निकाल रही हूँ क्योंकि फ्रंट लूप्स हमने यूज़ करने हैं. Then fifth, and sixth. Once you have done that, you need to just pull the yarn tail and tighten it up and it will close. तो इस तरीके से आप पुल करोगे तो आपकी जो ओपनिंग है ये बंद हो जाएगी. Now I'll go in from the top and come from the bottom. तो मैं ऊपर से नीडल को डाल रही हूँ और नीचे से पुल कर दूँगी, फिर से यहाँ से डाल रही हूँ और ऊपर से निकाल रही हूँ. एंड नाउ आई विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न. एक्स्ट्रा यार्न को मैं कट कर लूँगी यहाँ से. तो हमारा सेंटर पोर्शन रेडी हो गया है.
अब हमें सिर्फ साइड का पोर्शन बनाना है. सो द सेंटर पोर्शन इज रेडी, वी जस्ट नीड टू मेक द साइड पोर्शन एंड बोथ द साइड्स द पैटर्न विल बी सेम. तो दोनों साइड्स ऊपर और नीचे जो दोनों साइड्स हैं बेसिकली उसका पैटर्न सेम रहेगा. तो मैं एक साइड आपको दिखा देती हूँ और फिर दूसरा साइड आपने उसी पैटर्न को यूज़ करके करना है. सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट ऑन वन ऑफ द साइड्स एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम पैटर्न फॉर द अदर. बिफोर स्टार्टिंग we will pull the 6 front loops that we have so that it's easier to work. इसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे हम बाहर की तरफ ताकि ईज़िली हम इनमें वर्क कर सकें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बहुत अंदर हो जाती हैं वो और फिर नीडल जो क्रोशे होके वो उससे हम स्टिच में डाल ही नहीं पाते. तो इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम पुल कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसमें काम करना. सो इट विल बिकम ईजियर टू वर्क once you pull out the stitches a bit. Now we need to work in these 6 stitches. अब हमने ये जो 6 stitches हमने ये छोड़ी थी इसी में हम काम करेंगे. So I'm going to take my white color yarn ले रही हूँ मैं and I'll put my needle in one of these loops that I have. तो किसी भी एक loop में needle को डाल के yarn को pull कर लेंगे. Chain 3, 1, 2 and 3. एंड वी नीड टू वर्क इन द सेम स्टिच. इसी सेम स्टिच में हम काम करेंगे. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में जहाँ हमने यार्न को अटैच करके चेन 3 किया है 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2 एंड 3. चेन 3 एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे. Now we'll go into the next stitch. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे नेक्स्ट वाली लूप में. स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच हियर. चेन 3, 1, 2, 3 एंड इन द सेम स्टिच 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. उसी सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2 एंड 3. 3 चेन्स बनाएंगे. We'll make 3 chains. 1, 2 and 3 and we'll slip stitch in the same stitch. उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और यही हमने हर एक लूप में हर एक स्टिच में रिपीट करना है. वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न in each of these stitches that we have, each of the front loops that we have. So we'll go into the next front loop. next front loop में जाएंगे. Slip stitch, chain 3, 1, 2 and 3. 3 double crochet stitches in the same stitch. उसी सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2 and 3. chain 3 and slip stitch in the same stitch. chain 3 करके उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे. तो हमने ये 3 बना लिए. हमने 3 और करने हैं. We need to repeat this 3 more times. We'll go into the next loop, next stitch that we have here, the front loop of the next stitch. Slip stitch, chain 3, 3 double crochet stitches. 1, 2 and 3. chain 3 and slip stitch in the same stitch. Then into the next stitch that we have, next front loop, slip stitch there, chain 3, 3 double crochet stitches. 1, 2 and 3. chain 3, 1, 2, 3 and slip stitch into the same stitch. Now we have one last फ्रंट लूप लेफ्ट. एक लास्ट फ्रंट लूप रह गई है हमारी. सो विल गो इन स्लिप स्टिच. पहले हम वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे. chain 3, 1, 2, 3. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2 and 3. chain 3 and slip stitch into the same stitch. उसी सेम स्टिच में
स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमने किया है 6 टाइम्स टोटली। तो हमने एक तरीके से जो साइड का रैपर होता है उसके हिसाब से इसे बनाया है ताकि वो वाला इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास आए। नाउ चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ करेंगे एंड लीव अ लिटिल लॉन्ग टेल so that we can use it to weave in properly and adjust the sides। तो इसको थोड़ी सी लॉन्ग टेल हम छोड़ेंगे। Just pull it and tighten it up and now we'll take a tapestry needle and thread our yarn in there। तो यहाँ पे tapestry needle में हम ये वाली yarn डाल देंगे जो हमने थोड़ी सी लॉन्ग छोड़ी है। And first we'll go in here from this side, come out from the other। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से निकालेंगे इससे पहले। Then we'll go in from this side, come out from the other। 2-3 बार इस तरीके से करेंगे हम। Then again I'll go in from this side and I'll come out from the other side। 2-3 बार इस तरीके से हमने करना है ताकि ये सारा इकट्ठा हो जाए एक तरफ। और ये जो एक्स्ट्रा है पहले yarn tail इसको मैं कट कर देती हूँ। लेट मी कट द एक्स्ट्रा yarn tail that I have here। And just press it together and once you feel that it's all coming together you have to just push the needle from top and bring it out from the bottom and then cut the extra yarn। तो ऊपर से नीचे तक मैंने पुल कर लिया है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दूँगी। और यही सेम पैटर्न जो मैंने यहाँ पे किया है वो मैं दूसरी साइड पे भी करूँगी। सो आई रिपीट द सेम पैटर्न दैट आई हैव डन हियर ऑन द अदर साइड एंड आवर कैंडी विल बी रेडी। और हमारा कैंडी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए मैं दूसरी साइड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। आई विल कंप्लीट ऑन द अदर साइड द सेम पैटर्न एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। ये देखिए कैंडी इस तरीके से लग रही है बनने के बाद। ये देखिए मैंने और कलर्स में भी इसे बनाया है। आई हैव ऑल्सो मेड इट इन रेड एंड ग्रीन and you can make them in multi colors and then you can put them together in a basket। it will look really nice। आप इसको बहुत सारे कलर्स में बना के बास्केट में डाल के रख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेंगे। you can also use it as a keychain or you can add a magnet and use it as a fridge magnet। आप इसको फ्रिज मैग्नेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो एक मैग्नेट लगा के, या फिर इसे कीचेन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।